of DAV College for Girls, Yamunanagar. A very warm and cheerful morning to one and all present here. I am Khushi, Innovation Ambassador and Student Innovation Coordinator. Welcomes you all. Today's workshop focuses on design thinking, critical thinking and innovation design skills that are essential in shaping creative mind and future leaders. Innovation begins with curiosity, grows with critical thinking and flourishes with design. We are truly honored to host a session that aims to ignite these qualities within all of us. We extend our warm respect and warm welcome to our esteemed dignitaries present here today. We are privileged to have with us our officiating principal of DAV College for Girls and President of Institutions Innovation Council, Dr. Surinder Kaur, whose visionary leadership continuously inspires excellence in our institution. We also warmly welcome the IIC convener Madam Mrs. Vivek, whose constant guidance and dedication makes making a meaningful initiative possible. We also cordially welcome Dr. Kiran Sharma, Head of Hindi Department, and Dr. Rita, Head of English Department. We welcome you, ma'am. A heartfelt welcome to all respected faculty members and dear students who have gathered here to be a part of this intellectual journey. Now it is our proud privilege to introduce our esteemed resource person of the day, Dr. Saurabh Trivedi. Professor Dr. Saurabh Trivedi is an entrepreneur, an intellectual property expert, business consultant, an investor and seasoned trademark attorney. He serves as an associate professor and CEO of Incubation Center at IILM University, Gurugram, and holds advisory roles with IP Samadhan, Adya Co-Create Labs, and multiple startups and incubation ecosystems. With over a decade of corporate and legal experiences, he advises startups on intellectual property, strategy, resource planning and organizational alignment. He is known for helping innovators turn ideas into impactful ventures through strong leadership, strategic partnership and multidisciplinary team building. He is a member of Asian Patent Attorneys Association and Center for Education Growth and Research, and mentors several incubation centers under Niti Aayog, actively supporting entrepreneurship in innovation initiatives across India. We are truly honored to welcome Mr. Ghanshyam Jaiswal, Manager Admissions and Outreach at IILM University, as our distinguished guest today. With over 10 years of rich experience in admissions and outreach, he has played a significant role in guiding students, building academic connection and strengthening institutional growth. We welcome you, sir. To invoke divine blessings and mark the auspicious beginning of the session, we now proceed with the ceremonial lamp lighting. May we request our resource person, Dr. Rita ma'am, Dr. Kiran ma'am, Manika ma'am and Mamta ma'am to please be on the stage for lamp lighting ceremony. Sir, please play the song. May this flame inspire us to seek knowledge and embrace innovation among us. Please sir, song play कर दीजिए.
May we request Rita ma'am and Kiran ma'am to please be on the stage and kindly present a token of appreciation to Dr. Saurabh Trivedi sir. As a token of gratitude and respect, we would now like to felicitate our esteemed guest. Please give it up for the sir. It's very nice, very nice. Sir, please accept this small gesture as a symbol of sincere thanks and admiration. Jaiswal sir also. Please give it up for sir also. Sir, please accept this small gesture as a symbol of sincere thanks and admiration. Now, we respectfully invite Dr. Saurabh Trivedi sir to address the gathering and enlighten us with his valuable insights on design thinking, critical thinking and innovation design. Now, without further delay, it is time for the much awaited session. So please give a huge round of applause. So good morning DAV. और तेज आवाज आनी चाहिए मुझे एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है जब से मैं ये गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ तब से. So good morning. Good morning sir. Very nice. So thank you for giving me this opportunity to be a resource person and sharing the knowledge, insights, what I had gained from several past, I think almost 16 years from the industry. और उसके बाद आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के साथ भी वो जर्नी शेयर कर पाऊँ and how exactly this startup, design thinking, critical thinking, creative thinking and startup entrepreneurship, how this is going to be started, कहाँ से होता है, क्यों होता है, कौन करता है. Probably everyone you had seen the Shark Tank. Yes, sir. क्या होता है ये Shark Tank? क्या करते हैं उस पे? New startups or ideas, okay? Innovation, okay? और फंडिंग लेते हैं, okay? और अच्छा, I just wanted to be an interactive session. Okay, it's not like I'm going to share this PPT. आप ये पढ़ते रहना, ये दुनिया भर का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ठीक है? But मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना बात करेंगे. I hope it's okay. ठीक है ना, क्लियर है ना यार? Otherwise वो बोरिंग सेशन हो जाएगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. जो मुझे नहीं पसंद है, मुझे लगता है शायद वो आपको भी नहीं पसंद होगा, है ना? तो कम से कम ना हम बात करेंगे. So, I just wanted to share a quick glimpse what I had done so far, from where I had started and where I had reached. ठीक है, हम इन चीजों पे बात करने के बाद then we are going to come on the Shark Tank, then we are going to come on this design thinking aspect. जितना भी जो भी कोर्स किया है, चाहे वो मैनेजमेंट रिलेटेड है, चाहे वो डिजाइन रिलेटेड है, चाहे वो फैशन रिलेटेड है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड है, जो भी कोर्स आपने किया है, why exactly this is important for you and how this is going to help you to start your own journey. Okay, so I started my journey I think in 2009 और उस 2009 में मेरे को सिर्फ एक ही चीज थी कि मैंने एक MBA कर लिया तो I'm just going to become a MD, CEO बनना है मेरे को, क्योंकि मैंने MBA कर लिया है. अब मैंने MBA कर लिया बिकॉज इतनी फीस पे कर दिया तो मेरा एक ही मोटिव था कि मेरे को MD और CEO बनना है. शायद सबका
सबका ऐसी कुछ एस्पिरेशन होती है ना? एक कोर्स, एक डिग्री करने के बाद कि मुझे एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और एनी अदर कंपनी, फेसबुक, व्हाट्सएप और किसी भी कंपनी जो आपके माइंड में आती हो। सबको वही लगता है कि हम वहां के एमडी और सीईओ बन जाना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है हमें पैसा, सेल, क्या बोला है? अच्छा, ठीक है। सो नाउ हमें चाहिए होता है पैसा, एक पोजीशन, सेकंड पैसा। अच्छा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जो भी कोर्स अभी आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो कितना प्लेसमेंट आपको देगा या कितना पैसा आपको देगा? कोई एक्सपेक्टेशन इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट करते हो? हाँ जी, आपस में बात नहीं करेंगे, अभी तो मैं हूं ना। जब मैं चला जाऊं तब आपस में बात करेंगे। बताएं मुझे कोई एक्सपेक्टेशन। मैम क्या सोचते हैं कितना पैकेज होना चाहिए? अरे बोलो, क्या पैकेज एक्सपेक्ट करते हो मैम? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, कितना? 50 लाख। कहां से आ रही है मैम आवाज? वेरी नाइस। और अच्छा है ना यार, बोल रहे हो, और बोलो। बस एक ही करने वाली है। 10 लाख पर एनम, जितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसे है वो? द लर्निंग्स विच कॉलेज इज गिविंग टू यू, है ना? बस जो वो पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे आपको लगता है कि मैं एक इस पोजीशन पे हूं कि मैं अपनी वैल्यूएशन 10 लाख पे कर सकती हूं। ठीक है, 10 लाख पर एनम। ओके, सो जब ये जो कोर्स शुरू हो रहा है, या आप जो भी हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, अभी आप ये 10 लाख किसे कमा के दोगे? किस डोमेन में जाना चाहते हो? आईटी सेक्टर में। तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गोइंग टू अर्न 10 लाख पर एनम, देन यू नीड टू डिलीवर। कितना हमको डिलीवर करना पड़ेगा? 10 लाख को अर्न करने के लिए हमें कितना काम डिलीवर करना होगा? प्रोबेबली 10 लाख का 10x हमें डिलीवर करना होगा। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है अभी तक की इकोसिस्टम की। आई थिंक आपकी कुछ अलग हो सकती है या कुछ पैरामीटर्स और कम हो सकते हैं। Until unless we are not going to give something to company, then company is not going to pay us. पहला है। तो यही एक रूल था। मैम बैठो। ठीक है, तो पहला एक ही रूल था कि when I completed this PGDM, MBA, MCOM, LLB, LLM, जब सब ये कंप्लीट कर लिया था मैंने, तो मुझे लगा था कि मैं अभी ना सीधा जाके 50 लाख की जॉब और सीईओ बन जाऊंगा। बहुत आसान। बट मेरे सामने एक टारगेट रख दिया गया कि सौरभ जी, ये जो सैलरी आपको चाहिए इससे 10x आपको डिलीवर करना होगा। मैंने कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है सर, आप मेरे से इतना लोगे और मुझे दोगे इतना। मैं थोड़ा लाइक कि ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स प्रीटी मच गुड, बट नाउ जब आप ये सीख जाते हो, लर्न कर लेते हो, देन यू आर गोइंग टू रिमूव एल, और फिर क्या शुरू होता है? अर्निंग्स। तो ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, मुझे नॉलेज मिली, मैंने लर्न करना शुरू किया, एंड मेरा पहला जो अमाउंट था वो था आई थिंक 12,000 रुपए की सैलरी पर मंथ। बट ठीक है यार, इट्स ओके फॉर मी। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि ठीक है, स्टार्ट करने में क्या बुराई है, कम से कम कुछ सीखोगे ही ना। तो वो सीखना जब शुरू किया, सीजफायर इंडस्ट्रीज द फर्स्ट कंपनी हु इज हैविंग दिस फायर एक्सटिंग्विशर्स, सीसीटीवी कैमरास जो ये बनाते थे, आई स्टार्टेड देयर। मतलब बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया, बट आई जस्ट स्टार्ट टू सेल समथिंग। जब मैंने ये शुरू किया तब मुझे लगा अब मुझे अपने लिए कमाना। पहले मोटिव सिर्फ एक ही था, मुझे अपने लिए करना है मुझे। ठीक है, मैं दुनिया को कमा के दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपने लिए कमाना। ठीक है, आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। सीजफायर इंडस्ट्रीज मैंने 3 महीने के अंदर छोड़ दी, मजा नहीं आया। And when I think of that कि मजा नहीं आया का मतलब ये था कि मुझे लग रहा था कि this is not good for me। मेरे को नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। I joined a company which is a law firm। Coming from a management background, I joined a law firm। और जैसे ही मैंने वो law firm ज्वाइन करी, मैंने लीगल सर्विसेज बेचना शुरू कर दिया। लीगल सर्विसेज, अगेन पॉइंट पे जाना, सिर्फ लीगल सर्विसेज। एंड एनी कंट्री, मेरा टारगेट था मोर देन 152 कंट्रीज, कि मुझे सिर्फ एक फोन दे दिया गया था, वो क्या कहते हैं उसे, बीपीओ कॉल सेंटर। मुझे फोन दिया गया, कहा कि सौरभ जी सिर्फ एक ही काम करना है, आपको इस फोन को उठाना है, जापान, चाइना, कोरिया, यूरोप, यूएस फोन लगाना है और अपनी सर्विसेज बेचनी है। मगर इट्स गुड, ठीक है, बेच लेते, ट्राई करते हैं, क्या प्रॉब्लम है यार, ट्राई करने में, लर्निंग में क्या इश्यूज है। आई स्टार्टेड, एंड यू कांट बिलीव, आज भी 90/16B मालवीय नगर का बेसमेंट का ऑफिस न्यू दिल्ली में, 4 बंदे, 2 मेरे मारवाड़ी, एक मारवाड़ी बॉस था और एक और
सिर्फ वो, और एक मैं बैठा होता था और मेरे साथ एक शीला जी, a साउथ इंडियन लेडी, शी जस्ट स्टार्ट पिकिंग द फोन इन द मॉर्निंग और कॉल करने शुरू कर देती थी। बट मैंने कहा ये बिजनेस कैसे होगा, सिर्फ फोन से होगा? Then you can't believe, मुझे ना मजा आने लग गया। मजा कैसे आ रहा था? I'm talking with the Japanese people, I'm talking with Korean, Chinese, और उनके लैंग्वेज सीख रहा था, मोशी मोशी, I just communicating ना, मतलब ठीक है, मजा आ रहा है। Then I got a chance to talk with a person who made this Apple का touch pad, जिससे बनाया था। So I got a chance, एक दिन वो रात को फोन हुआ, मैंने कहा सर आपने वो आपका ये टच पैड है, इन्वेंशन है, so you just wanted to file it in India, कोरिया, जापान कहीं भी फाइल करना चाहते हो? कह रहे yes। So वो जो पहला जब आया मेरा क्लाइंट, $45,000, $45,000, हम बेसमेंट में बैठे होते थे, मेरा बॉस लॉ करने लीव में इवनिंग में जाता था, लाइक यार कि कुछ चेंज हो गया है। $45,000, डॉलर का रेट 48 रुपीस उस टाइम पे। ही ब्लॉक, मतलब मेरे को ये आता नहीं था सर, मुझे पता ही नहीं था कि बिजनेस होता क्या है, बट मैं ये सीख रहा हूँ अभी। उसने उस करेंसी को होल्ड किया, उस पैसे को होल्ड किया अपने पास, एंड देन व्हेनेवर द करेंसी के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं ना, उस टाइम पे वो करेंसी को सेल आउट करता। बट ये लर्निंग्स मुझे वहीं से मिली थी, वो चाबी खोलने से लेके ऑफिस कब खुलेगा कब बंद होगा, ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई। और एंड कहाँ होती है जाके? आई वाज अ पार्टनर ऑफ अ फंड, एजिलिटी वेंचर, 450 करोड़, ठीक है। आई स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड वेंचर बोल्ट, which is an angel investment network, having a HNIs. Each HNI, 20 HNIs are with me. 20 HNIs, one HNI is having a worth of 450 crores. 20 HNI मेरे पास थे जिन्हें एंजल बनना था। ये एंजल क्या होते हैं? एंजल क्या होते हैं? परी। फिर एंजल फॉर बिजनेस, प्रोबेबली जो आपको आपके वक्त में काम आता है या इनिशिएट करने में आपकी हेल्प करता है आपके बिजनेस को। He's going to make a angel investments. So I started angel investments. मैंने भी करी and doing a funding with syndicate fund किया मैंने, सुखबीर सिंह, the singer सुखबीर सिंह, फिर तो बहुत सारे आए, दलेर पाजी और बहुत सारे आए। तो I start investing. जैसे वो इन्वेस्ट किया, e-bike go is a company name. Then मेरा कैशियर, mentor card, where you elevate, and portfolio companies were Go Mechanic, couple of more. Even the Shark Tank पे जो अपीयर हुआ था Brain Wired. I started this cohort by the name of Agricul, and हम केरला से उसे ढूंढ के लाए थे, उसको नरिश किया उस आइडिया को कि क्या करना है, कैसे बनाना है, प्रेजेंट कैसे करना है। आज वो जर्नी जब ये कंप्लीट कर लिए, तो आई एम बीइंग ऑन टू द बोर्ड ऑफ मोर देन 55 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, वेयर जहां मैं सिर्फ आप जैसे यंग माइंडसेट्स को नरिश कर रहा हूं कि आपको किस बिजनेस आइडिया पे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे पैसा बनाना है। ना कि शार्क टैंक देख के सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि आइडिया कुछ भी हो जाके सीधा बोल देना सर पैसा चाहिए हमें। मतलब अभी मैं जितनी भी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ उसमें सीधी एक ही बात आती है, सर मुझे 1 करोड़ दे दो, काम कर दूंगा। मैंने कहा अगर इस 1 करोड़, और तुमने कितना लगाया? कह रहे अभी हम सर आइडिया पे। तो अगेन देयर इज अ टर्म कॉल्ड बूटस्ट्रैप। क्या होता है वो बूटस्ट्रैप? एनीवन? हाँ, जो पैसा आपके पास है आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, दिस इज नोन एज बूटस्ट्रैप, कि हम लोगों ने अपनी शुरुआत अपने पैसे से की। When someone, आप अगर अपने आइडिया पे आपको ही विश्वास नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए कंपनी खोलने के लिए, एंड यू थिंक दैट अ इन्वेस्टर हु इज सिटिंग देयर वो आप पे विश्वास कर ले, व्हाट डू यू थिंक? ऐसा होना चाहिए? Until unless you are not going to prove me that sir I am believing on my idea, या I am believing whatever I am doing, चाहे मैं बिजनेस कर रही हूँ, चाहे मैंने किसी भी टेक्निकल बंदे को को-फाउंडर बनाया, प्रॉब्ली मैं नहीं कहता कि सब कुछ आपको आता है, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। आप डिफरेंट डोमेन से हो, आपने कहा मैं फैशन डिजाइनिंग में हूँ, मुझे ये चीज बहुत अच्छी आती है, बट यू आर लैकिंग इन समथिंग। वो लैक क्या होगा? प्रॉब्ली किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को आपको बनाना नहीं आता होगा। सो जब भी मैं बात करता हूं ना किसी को-फाउंडर की, कि आपको कोई को-फाउंडर चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? जो आपके स्किल को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लाइक ये मेरी सहेली है, ये अच्छा करके मेरे को अच्छा लगता है, तू आजा मेरी बिजनेस पार्टनर बन जा, नहीं। द पर्सन हु डू हैव दोस काइंड ऑफ स्किल्स, जो मेरे को मेरे बिजनेस आइडिया को ग्रो करने में हेल्प करे। मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूं, बट मैं बिजनेस प्लान बनाना नहीं जानती, मैं मार्केटिंग करना नहीं जानती, या मैं टेक्निकल प्रोडक्ट बनाना नहीं जानती,
ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे वही बंदा चाहिए होगा ना जो मुझे उसमें हेल्प कर सके। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ये? ठीक है ना, क्लियर है ना अब तक? अब देन जब हम बात करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है डिजाइन थिंकिंग या ये आइडियाज आते कहां से है? सर कोई प्रॉब्लम्स देखते हैं आसपास, प्रॉब्लम्स देखते हैं आसपास, ओके, और क्यूरियोसिटी, ओके, और फ्रस्ट्रेशन, वेरी नाइस। और अच्छा ये सब इन्हीं पे इसी बात है, ऐसा है क्या? नाउ शी इज गोइंग टू गेट अ फंडिंग, इन्हीं को फंडिंग मिलनी चाहिए। हम लोग बात क्यों नहीं करते? क्या होगा, गलत बोल देंगे, बट क्या हो जाएगा उससे, होगा क्या? कुछ लर्न तो करेंगे। मुझे ऑलवेज लगता है, आई जस्ट बिलीव ऑन दिस कम्युनिकेशन पार्ट। अभी भी कोई मेरे से ये कहता है कि सर ये पिच किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ व्हाटएवर लैंग्वेज यार, पंजाबी आती हो, हरियाणवी आती हो, जो मर्जी लैंग्वेज आती हो, तुम सिर्फ मुझे समझा पाओ कि आइडिया है क्या, ठीक है? बट इस सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कम्युनिकेशन है। किसी ने कुछ पूछ लिया और हम बैठ गए, छोड़ो यार क्या बनाया था, उसकी तरफ देखते हैं क्या बनाया, बताना हमें क्या बनाया, कितना पैसा चाहिए तू बता हमें कितना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन की पावर कितनी बड़ी है। मजा नहीं आता इससे बात करने में, पूरे दिन रात शाम तो आप आपस में बात करते हो यार इतनी, हाँ या ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम है आज बात करने में? मजा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ मेरे को, मैं रोक दूंगा, मैं प्रेजेंटेशन करता हूं कंप्लीट। आ रहा है तो जोर से बोलो ना यार, तुम मुझे मोटिवेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे दूंगा? ओके, गुड, थैंक यू। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आइडियाज, एक तो ना बहुत बेसिक चीज है कि किसकी क्या हॉबी है, किसकी क्या हॉबी है वो उसे परस्यू करना चाहता है एज ए बिजनेस। मुझे कोई चीज कलेक्शन में अच्छा लगता है, मुझे कोई चीज बनानी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है ये हॉबी के ऊपर मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है? बट वो हॉबी अगर आपकी है तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस हॉबी से कितनी बड़ी टारगेट ऑडियंस को फायदा होने वाला है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ डीएवी गर्ल्स कॉलेज को फायदा होने वाला है तो मैं ये हॉबी परस्यू करती हूँ और बिजनेस आइडिया बनाता हूँ। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? Whenever we are going to talk about the first thing she mentioned the problem. आप आसपास बहुत चीजें देखते हो ना, ये दरवाजा ऐसे क्यों खुलता है, ये एसी ऐसे क्यों चलता है, इसमें आवाजें क्यों आती है, ये स्पीकर यहाँ नहीं होना चाहिए, मैडम ने ये ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बताते हो ना, घर में, इस कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम बताते होगे, और बताते कैसे होगे? वो इनफॉर्मल, शाम को चाय पे बैठ के। बट कभी उसके ऊपर वर्क किया है कि शायद कोई सॉल्यूशन निकल आया हो, कि अगर वो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, बट उस सॉल्यूशन के बाद वो कम्युनिकेशन, वो चाय खत्म हुई, वो कम्युनिकेशन खत्म हो गई, छोड़ना कल बात करेंगे, परसों देखेंगे क्या होगा। ऐसे ही होता है। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मुझे लगता है आई थिंक आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां से ना कोई प्रॉब्लम पिक कर लो कि सर आपकी फैक्ट्री में या आपकी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आती है। अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है यार, द कंपनी कॉल्ड ग्रे ऑरेंज। कभी ना पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आजकल तो वैसे भी जेनजी हमारा और आगे चल रहा है हमसे, मेरे बताने से पहले उसे पता होता है क्या बताने वाले हो, सर अगला बताओ। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, बट फिर भी मैं स्टिल ये बात कर रहा हूँ कि शायद वो बुक्स ना एक बार देखनी चाहिए। एंड चलो बीच में एक बात आ गई है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी इंस्टाग्राम और YouTube या कोई भी चैनल या किसी भी चीज को आप देखते हो और वहां से कोई इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हो, और आप कभी उन्हें वेरीफाई करते हो उन सोर्सेस को? आई थिंक यू हर्ड दिस स्टेटमेंट, मोदी जी गिर गए, एंड आपने कहा मोदी जी गिर गए, ठीक है ना? यू नेवर ट्राई टू वेरीफाई द सोर्सेस। ये किसने कहा है मोदी जी गिर गए? कभी करा है, सोचा है? मैंने शायद न्यूज चैनल पे देखा था, मैंने कौन से न्यूज चैनल पे देखा था, क्या कहा था? मोदी जी गुजरात वाले गिर गए, यहां मोदी जी गिर गए, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे एक ही बात प्रूव करना चाह रहा हूं, whatever information, whatever things you are going to see or watch
किसी भी चीज को आप देखते हो, समझते हो, उसको ना वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां खड़े होकर सौरभ त्रिवेदी ने जो मर्जी बोल दिया, ये सब सही है? वेरीफाई करेंगे ना। द पोर्टफोलियो कंपनीज व्हिच ही इज गोइंग टू मेंशन, द थिंग्स हाउ एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू असाइन, और जो भी ये चीजें बता रहे हैं मुझे, क्या इन्होंने ये किया है या नहीं किया है, तभी तो प्रूव होगा ना। हाँ या ना? अभी जब टीचर पढ़ा रही होती तब तो हम कहते हैं कि गलत है, हमें पता है क्या होगा, वो तो वेरीफाइड है। हाँ या ना? अच्छा, पीछे तक आवाज आ रही है, वो जो अंधेरे में कुछ कुछ है वहां तक आवाज आ रही है? मैम मेरे को दिख रहा है। ओके, सो मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज है, हम लोग कम्युनिकेट करते रहे। तो अभी जो बात आई थी, जो इंस्टाग्राम पे चीजें आती हैं, जो भी यूट्यूब पे चीजें आती हैं, जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द सोर्सेस, ठीक है? डोंट बिलीव ऑन एवरी ईच थिंग्स, ठीक है? इवन शार्क टैंक की जब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ड्यू डिलिजेंस के बाद हम बहुत सारी चीजें बाहर कर देते हैं। आज की जो कमिटमेंट है 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, जब तक आप लोग जो स्टेज पे बोल के जाते हो ना, हमने ये बिजनेस प्लान बना लिया, हमने ये आईपी क्रिएट कर ली, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर ली, हमारे पास इतना फंड है, हमारे को हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि हम बूट स्ट्रैप दे, इतना फंड कर रहे हैं, इनको जब मैं वेरीफाई करता हूं और ये जब मैच नहीं होते तो मैं उनको बाहर कर देता हूं, और वो बाहर जाके ये बोलते हैं कि शार्क टैंक पे सब कुछ फेक है। बट किसी ने कोशिश नहीं करी ना, क्यों फेक है, आपको क्यों फंडिंग नहीं मिली, पूछा कभी? किसी ने पूछा ही नहीं। हमने तो उससे सुना और बोल दिया। बट I'm just going to share you कि please try to understand, verify the sources, whatever you are going to see. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई भी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो उसके बारे में डिस्कशन करो। द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रतन टाटा का एक पिच डेक का फॉर्मेट है। रतन टाटा पिच डेक का एक फॉर्मेट है, आई थिंक 13 स्लाइड्स आर देयर। सिर्फ उस स्लाइड्स को पीडीएफ डाउनलोड करोगे, वहां पे ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कोशिश करना उन क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है? कि इसमें क्या लिखा है, किस तरीके से समझना चाहता है, और उसी तरीके से आप उसे डिस्क्राइब करो। कमिंग बैक टू ग्रे ऑरेंज, जहां हमने छोड़ा था, 2 बच्चे डिफरेंट कॉलेज के, उन्होंने कहा कि क्या करना है यार, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ खोलना है यार, कुछ काम करेंगे हम लोग। दे जस्ट वेंट टू अ कंपनी, और वहां पे उन्होंने देखा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी? एक मैनुअल लेबर लगी हुई थी जो इस चीज, एक प्रोडक्ट को यहां से उठाती थी और दूसरी जगह लेके जाके रख देती थी। एंड ये जो ये ड्यूरेशन थी ना, इसमें बहुत सारा टाइम लगता था, एंड टाइम इज मनी, ठीक है ना? अब मालिक परेशान, यार ये इतनी सारी चीजें हैं, बार बार इतना पैसा खर्च होता है, ये आदमी जो इधर से उधर जाता है, ये थकता भी है, बैठ जाता है, ये जो टाइम गैप है जिसकी वजह से मेरा ये जो बिजनेस लॉस हो रहा है, इसको कैसे कवर करूं? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। इन दोनों बच्चों ने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनी, वापिस आए कॉलेज कैंपस में एंड डिस्कस किया, यार इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। देन दे मेड 2 रोबोट्स, तो 2 रोबोट्स बनाए, उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल करी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है क्या है? क्या होता है? अपने इनोवेशंस को, क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। व्हाटएवर क्रिएटिविटी, व्हाटएवर प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर प्रोसेस यू डू हैव, यू आर गोइंग टू फाइल एज एन आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, सेमीकंडक्टर, दीस ऑल आर कम्स अंडर दिस आईपी। उन्होंने आके उन रोबोट्स को बनाया, डिस्कशन किया, उसकी आईपी फाइल करी। जैसे ही वो आईपी फाइल हो गई, दे वेंट बैक, सर सॉल्यूशन इज हियर। उसने क्या सॉल्यूशन? कह रहे सर ये 2 रोबोट्स बनाए, एक उठाएगा एक रखेगा, ना थकेगा ना कुछ होगा, ना पानी भी नहीं मांगेगा। Nice here. They deployed that, and it functioned pretty well. एक प्रॉब्लम दिख गई थी कि मैनुअल लेबर लगी हुई है, मैनुअल लेबर कर रही है, उन्होंने कहा रोबोट से बदल देते हैं, and they got a successful implementation of their project. उसके बाद nowadays I think they had headquarter in Gurugram, Singapore and couple of more countries. वो सिर्फ 2 बच्चे, कुछ अलग तो नहीं किया। रोबोट बनाना सबको पता है ना, रोबोट बनता है यार, किसी से बनवा ही सकते हैं, है ना? इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को नहीं बनाना आता तो कोई और बना के दे नहीं सकता, मुझे दे सकता है ना। बट हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस इट, कम्युनिकेट, जहां पर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको बताऊं जाके कि ये सॉल्यूशन मेरे पास है, भले ये सॉल्यूशन मैंने कहां से लिया है, कैसे लिया है, वो मेरी प्रोप्राइटरी राइट्स है। आइदर मैंने बना लिया या मैंने कोई, इवन जब भी हम वुमेन्स या गर्ल्स की बात करते हैं, आई थिंक वो नायका वाली कौन है? फाल्गुनी। और कौन कौन है? वो शुगर वाली
विनीता से। और कौन है यार? मामा हाँ वो गजल है। ओके सो ये सारे ना, और अभी आऊंगा मैं इसके ऊपर, आई थिंक प्रेजेंटेशन तो रही जाती है। सो दैट इज व्हाई आई एम बिलीविंग ऑन कि हम ना कम्युनिकेशन करें, बात करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये मैं दे भी दूंगा, ये शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट दिस प्रेजेंटेशन का एक ही मतलब था, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन आइडिया। वो आइडिया क्या होगा, हॉबीज या मार्केट की डिमांड वांट्स, मार्केट क्या चाहती है, कोई नए तरीके का सोप चाहती है, कोई बर्गर चाहती है, अग्रवाल जी आए, मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, बर्गर सिंह है, बर्गर किंग है, बट हमें एक और बर्गर चाहिए, अग्रवाल जी आ जाएं, गुप्ता जी आ जाएं, ठीक है ना। अगर मेरे को लगता है इतना बड़ा गैप है मार्केट के अंदर कि वो बर्गर वाला वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो बना देते हैं, गुप्ता बर्गर बनाते हैं, ठीक है ना। गलत तो नहीं कर, बिजनेस इज अ बिजनेस। द ओनली थिंग इज दैट हाउ एग्जैक्टली अ थिन लाइन बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस एन स्टार्टअप, ओनली देयर डेफिनेशन और ऑन देयर स्केलेबिलिटी। एक राशन वाला या जनरल स्टोर वो भी एक बिजनेस करता है ना, और शायद अच्छा ही कमा रहा होगा, ऐसा भी नहीं कि बुरा कमा रहा होगा, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को देख लो, वो अच्छे तरीके से एक रेवेन्यू अर्न कर रहा होगा, बट दे आर नॉट गोइंग टू फिट इनटू दिस स्टार्टअप की डेफिनेशन में। तो जब भी मैं ये बिजनेस की बात कर रहा हूं, एक बिजनेस को ना स्केलेबल लेवल पे लेके जाओ। इट्स नॉट लिमिटेड टू डीएवी गर्ल्स कॉलेज। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने कहा मैडम ये प्रोडक्ट यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ के लिए अच्छा है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, बट ये स्केल नहीं करेगा। स्केल का मतलब है क्या ये डीएवी के बाहर जाके हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये प्रोडक्ट जरूरत है या नहीं, then it is going to fit into this स्टार्टअप की डेफिनेशन में फिट हो जाएगा, ठीक है। सो सेम लाइक ग्रे ऑरेंज की जब हमने बात करी, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और आप तो शायद आई थिंक मोर देन कुछ 50 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर चुके हैं सिर्फ आईपी। अच्छा ये आईपी बड़ी अच्छी चीज है यार। इस आईपी ने क्या किया, आप चाहे बिजनेस करो ना करो, सिर्फ एक ऐसी चीज, और प्रोबेबली इन इंडियन टर्म्स अगर हम बोले तो वो जुगाड़, एक ऐसा जुगाड़ हम बना दें और हमें लगे कि हम इस पे अपना राइट्स रखते हैं। सेम लाइक यार किसी भी प्रोडक्ट को आपने देखा होगा शार्क टैंक पे, और शार्क टैंक से ज्यादा अच्छा है ड्रैगन्स डेन, ये जहां पे ना बहुत रियलिटी की बात होती है, आईपीस की बात होती है। यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्रिंज भी हो जाती है हमारी। अच्छा व्हाट हैपेंड टू माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स के साथ क्या हुआ किसी को पता है? एक अच्छा मोबाइल फोन था ना मार्केट के अंदर, क्या हुआ, वो कहां गया एकदम से, कुछ गायब हो गया एकदम से, कैसे? उसने मॉडिफिकेशंस नहीं की? नहीं। और कुछ? कहां चला गया वो माइक्रोमैक्स? एक अच्छा मोबाइल हैंडसेट था, बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर करी थी, इंडिया में धूम मचा रहा था। एक छोटा सा एलिमेंट मिस कर गया, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। He infringed the patents of Ericsson, और एरिक्सन ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला, एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपका है, ये चिपसेट आपका है, एंड यू आर इन्फ्रिंजिंग। अगर माइक्रोमैक्स कोई भी मोबाइल हैंडसेट बनाना चाहता है बाय यूजिंग दिस आईपी, देन दे नीड टू पे अ रॉयल्टी। तो इस आईपी का खेल बड़ा अच्छा है। अच्छा लोग बात करते हैं रीबॉक, नाइके, एडिडास रोड पे बिक रहे हैं 400-500 रुपए में, और सर 10,000 का शूज, सर ये रोड पे 500 बिक रहा है, देखो वही है, वही स्कूश है ना, क्यों है ऐसा? अच्छा ये डिजाइन थिंकिंग की बात हो रही है ना, समझने की कोशिश करो। मैं हरदम जब भी ये बात करता हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ ये बोलता हूँ, जो भी आसपास की चीजें हो रही है ना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्यों, कैसा, कब, क्यों नहीं, समझ लो। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना शुरू करोगे ना, देन यू आर गोइंग टू मेक अ पावरफुल प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, कुछ आइडेंटिफाई कर लोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक योर आइडिया कि ये आइडिया आ चुका है दिमाग में, करना क्या है। ये मैं ग्रे ऑरेंज से शुरू कर रहा हूं और मैं आगे भी आता हूं, अभी कंपनीज का नाम लेता हूं। अनदर कंपनी नेम अजना लेंस। आप बिलीव करना, द फर्स्ट नेम ऑफ अ कंपनी इज अ डायमेंशन NXG। जब वो मेरे पास तीनों फाउंडर्स बैठे थे कि सौरभ जी सिर्फ आईपी फाइल करनी है एंड इतना सा सपोर्ट चाहिए, एंड यू कांट बिलीव, आज एक बार चेक कर लो अजना लेंस की न्यूज। अगेन आई एम सेइंग दैट यू नीड टू वेरीफाई। आप देखो अजना लेंस और लेंस कार्ड का
क्या कोलैबोरेशन है एंड कितनी फंडिंग उठाएंगे?